Hi viewers, this is Nisma Amir with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet Mr. Mir Shoaib Ahmed, CEO of Diamond Paints. Hello sir, welcome to our show. It's a pleasure that you're here with us today. Thank you for having me. Starting off our show, we would want you to tell us about yourself. कहाँ से शुरुआत ली, स्पेशली अपने प्रोफेशनल करियर की प्रोफेशनल जर्नी कैसे शुरू हुई एंड हाउ डिड इट ऑल कम अलोंग? My father, late father Mir Alauddin, he started this company in 1982, Diamond Paints. Okay. And I was studying then. So then when I completed my masters from Punjab University, so I joined full time in 1991. Okay. So I've been working for the company ever since. So you were always keen on joining the business या खुद से भी आप passionate थे? मतलब एक होता है ना कि एक चीज़ फैमिली में चलती आ रही है and then it's understood that I'm gonna join them, or else you had your own interest in it? No, my father actually involved me in business even when I was in college. Okay. So I was part-time working for him for last 6 years when I finally completed my education and joined full-time. Okay, great. So it was kind of always there for me. Okay. So once you joined the business full-time, what do you think, what value you brought to the table and how were you able to, bring a different aspect to Diamond Paints? When I joined the company, we were only selling the industrial paints. हम सिर्फ पेंट बनाते थे इंडस्ट्री के लिए, जिसमें फैन वाले हैं, ट्रांसफार्मर वाले हैं, सोइंग मशीन वाले हैं, एंड थोड़ा बहुत डेकोरेटिव. So when I joined in, तो I always wanted to be number one. Okay. In paints. It was a very far-fetched idea at that time because हम बहुत पीछे थे और because तकरीबन 92-93 में तो हमने डेकोरेटिव रेंज शुरू की. तब तक हम सिर्फ इंडस्ट्रियल कोटिंग्स में थे, बट अल्टीमेटली एक टीम अच्छी बनाई and then my mother's prayers was with me. Definitely. And I think with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, we are today where we are now. Definitely. Diamond Paints is now the leading company in the paint industry, or as you said, it has been a big milestone for you guys, for the company. तो इस milestone को achieve करने में क्या processes रहे, क्या कहले मराहिल रहे, और how were you able to come to this achievement? It was a very long road actually, because we started as a medium-sized company when I joined. So it wasn't easy because along the way, since we were into making industrial paints, so the next logical step was moving into powder coatings. Okay. That we did. I think we were the first Pakistani company जिसने powder coatings बनाई, और इस वक्त we are the leaders in that segment also, अल्हम्दुलिल्लाह. और डेकोरेटिव के लिए ये था कि वो रेंज पहले पूरी बनाना, पाकिस्तान के क्वालिटी पैरामीटर्स को समझना, और पाकिस्तान की क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के अंदर, मार्केट के अंदर there is quite an interesting segmentation. Okay. So हर इलाके की ज़रूरत एक सी नहीं है. सही. तो उसको समझना और उस इलाके के मुताबिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके फिर उसको मार्केट करना. सही. Because I used to travel a lot. मैं I have been everywhere. So उसमें यह है कि I was there, so it was easy for me to judge what the market requires. सही. और ज़ाहिर है कि पीछे I had the team जिसने हमें वो प्रोडक्ट्स दी, और फिर उसके बाद फिर हम ऐड करते गए चीज़ों को, लाइक
फिर हम पाउडर कोटिंग्स में आ गए, फिर हम व्हीकल रीफिनिश में आ गए, फिर हम रोड मार्किंग्स में भी अब हैं। अच्छा, बिफोर यू कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक, जब एक कॉमन मैन के सामने बात होती है डायमंड पेंट्स या एनी पेंट कंपनी, इंसान के जहन में सबसे पहले बस हाउस और डेकोरेटिव और बिल्डिंग्स रिलेटेड पेंट्स और वो चीज़ें आती हैं, बट यू गाइज हैव अ वेरी वास्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो वो थोड़ा सा इन कॉमन लैंग्वेज हमें बताएं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो डायमंड पेंट्स जो है वो इस वक्त इज इन्वॉल्व इन। देखिए 70% मार्केटिंग तो डेकोरेटिव पेंट्स की है, विच आर हाउस पेंट्स। ओके, सो अब 30% के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सही। एंड वी मेक ऑल ऑफ देम। ओके, उसके अंदर मेरा ख्याल है एक तो इंडस्ट्रियल पेंट्स आ गए, सही। फ्रॉम विच वी एक्चुअली स्टार्टेड, एंड देन फिर उसकी एक फर्दर के अंदर पाउडर कोटिंग्स आ गए, बिकॉज ये भी इंडस्ट्रियल पाउडर की शक्ल में सप्लाई होते हैं। दे आर VOC फ्री, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिकली अप्लाई होते हैं, देयर इज जीरो वेस्टेज, सही। और देन यू बेक इट एट 200 डिग्री फॉर 20 मिनट्स टू गेट द रिजल्ट। तो वो भी हम बनाते हैं। उसके बाद व्हीकल रीफिनिश है, खुदा ना खास्ता गाड़ी गेट्स एक्सीडेंटेड तो उस पे जो पेंट होता है, अच्छा, हाँ, उसके लिए हम बनाते भी हैं। और हमारी एल्प्स एक कंपनी है मलेशिया की, उससे हमारी हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। ओके, वो उसके भी हम सारा करते हैं। और फिर रिसेंटली हमने रोड मार्किंग जो है, जो सड़कों पे लाइंस येलो एंड वाइट लाइंस होती हैं, और इसके अलावा रोड मार्किंग पेंट भी होता है, वो भी हमने शुरू किया। That's a different type of paint. Yes, but it is thermoplastic. Okay. और स्पेशल मशीन से अप्लाई किया जाता है। हम अप्लाई फार्मूले पे भी जाते हैं। सही। और फिर देयर स्पेशलिटी कोटिंग डिवीज़न भी है। वो पेंट्स जो कि एक तो बहुत टेंडर बिजनेस में लेती हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, पाकिस्तान रेलवेज है, वापडा है, सो मेनी अदर्स। और फिर उनके उसी स्पेशलिटी कोटिंग्स में एक होता है जो आपको आपके बैराजेस पे लगता है, विच आर, और रोड पे उस पे लगता है, आपके फ्लोर पे लगता है, विच आर इपॉक्सीज। उसमें आपकी कोल्टार इपॉक्सीज भी होते हैं। सो इट्स अ ह्यूज रेंज। So lot going on there. Yes. Alhamdulillah, we do all. That's great. Yes. In your opinion, आपकी नज़र में डायमंड पेंट्स का जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट वो क्या होगा? How do you guys, you're leading the market, तो आपकी नज़र में क्या वो ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट है which differentiates you from the rest? I think it might come as a surprise to you, but I think our USP is that we do not work for making profits. Okay. Because जो आज से चंद साल पहले I went through a training, और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मुझसे पूछा ट्रेनर ने सबसे कि I mean what is your vision of life? सही। Because life goes I think is much more than making money. बिल्कुल। और फिर उसमें उन्होंने एक एज अ वेरी फेमस फिलोसोफर मार्क ट्वेन, उसका एक कोट उन्होंने किया कि उसका एक कोट था कि द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ अ पर्सन's लाइफ, द डे ही इज बॉर्न एंड द डे ही नोज व्हाई। सो दैट व्हाई kept me thinking कि why I am here, what is the reason of my existence. सही। That led me to follow Abudia business model. Okay. Abudia is from Abd, and Abd means a slave. Okay. So Abudia is basically slavery of Allah, okay, but in a good sense, willingly. Definitely. पहला ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया जी कि वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सो देयर कम्स द रीज़न ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, व्हाई आर वी हियर। और उसका जो दूसरा पार्ट है उस अबूदिया बिजनेस मॉडल का, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, खैरुन नासा मन यनफ़उन नासी, तुम में से बेहतर वो है जो दूसरे इंसान के लिए बेहतर है। और इन बिजनेस एनवायरनमेंट में ये आ जाता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज़ के लिए बेहतर नहीं हैं, बिल्कुल, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, बिकॉज यहाँ रैयत का कॉन्सेप्ट है कि जो लोग मेरे अंडर हैं मुझसे पूछा जाएगा ऑन द डे ऑफ द जजमेंट कि मैंने इनके लिए क्या किया। तो दूसरों से करने से पहले यू हैव टू फोकस ऑन योर एम्प्लॉइज़ जो आपके साथ मिल के इस बिज़नेस को चला रहे हैं। सो इस चीज़ को मैं लेके चला एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन एम्प्लॉय रिफॉर्म्स। फिर इसमें एक तसीह नियत आ जाती है कि जी बिज़नेस क्यों कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो वो ये इसलिए नहीं कर रहा कि मेक मोर मनी, बट वो इसलिए कर रहा हूँ कि आई मीन आई कैन एम्प्लॉय सो मैनी पीपल, इफ़ आई हैव मोर मनी आई हैव मोर मनी टू हेल्प अदर्स। मेरा ख्याल है ये जब से ये नियत की है और जब से अपने लोगों का ख्याल रखना शुरू किया है,
This has translated. आई in your थिंक business. दैट्स पिछले ये 4 साल के अंदर ये सब कुछ जो हाईएस्ट एवर सेल्स हैं, और ये आई मीन लास्ट ईयर वी डिड मोर देन 13 बिलियन ऑफ सेल्स, जो पाकिस्तान में किसी कंपनी ने आज तक नहीं की, जबरदस्त। मल्टीनेशनल्स और नेशनल। Yeah. एंड मल्टीनेशनल तो लाइक दे आर हाफ ऑफ अस राइट नाउ। तो वो ये है कि आई थिंक ये इसी की वजह है। सो आई थिंक दैट इज़ आवर वेरी यूनिक सेलिंग पॉइंट कि हमारा फोकस बिजनेस पे तो है, मगर ये जो दो अबूदिया बिजनेस मॉडल हैज़ एक्चुअली गिवन अस द डायरेक्शन, जिसकी वजह से आई थिंक ये हम Well, I think a lot of people can draw inspiration from this. Budding entrepreneurs हो या जो already businesses चला रहे हैं, why not? This is a very different vision and aspect जो आपने हमें explain किया है, and definitely it has worked out for you. Yeah, it has. और नीयत always pays Yes. off, definitely. अच्छा, मुझे बताएं कि in the industry there is a lot of competition. Be it आप लोग अभी lead कर रहे हैं and hopefully you will keep on doing that. But competition को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से deal करते हैं? How do you make sure that you're on top of your game? I think it's one is research and development. Yeah. You have to keep on watching के दुनिया किस तरफ को जा रही है, and you have to keep on producing better products. और green chemistry is something that we all have to look into because environment का बहुत बड़ा issue है, especially for Pakistan. जी. So उसके तो we are looking into various products जो हम अभी इंट्रोड्यूस करेंगे in the next 2-3 years, इन पे काम शुरू हो चुका है to keep abreast of the competition. अभी आपने रिसर्च और डेवलपमेंट की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की. हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट फॉर द पेंट इंडस्ट्री, और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है व्हेन इट कम्स टू R&D एंड टेक्नोलॉजी इन द पेंट इंडस्ट्री? पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च नहीं है, और उसकी वजह यह है कि एक तो फ्रेंकली कोई ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है जो ये करे. जी. अब अभी एक पाकिस्तान कोटिंग एसोसिएशन के साथ मिलके एक इंस्टीट्यूट शुरू किया जा रहा है, एंड अच्छा. उसमें ऑब्वियसली वी विल पार्टिसिपेट आल्सो. सही. तो उसमें अभी उस पर काम होगा. फ़िलहाल तो बेसिकली व्हाट यू डू इज़ दैट यू साइन एन MOU या कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट फ्रॉम अ मल्टीनेशनल, और फिर उस एग्रीमेंट के तहत वो फिर आपको अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, एंड अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान में आ जाती है. और अभी कोई एज सच इतनी डायरेक्ट मैं समझता हूँ कि ये लेवल नहीं है कि यहाँ R&D इस लेवल की हो कि हम नई प्रोडक्ट्स खुद इंट्रोड्यूस कर सकें. वी हैव टू लुक एट द वेस्ट राइट नाउ. सो वी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर नाउ. यस. ओके. जब हम बात करते हैं चैलेंजेस की, ओवरऑल पाकिस्तान में जो पेंट इंडस्ट्री है, किस किस किस्म के चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ कह लें अभी वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ तक होनी चाहिए? तो वो क्या चैलेंजेस हैं आपकी नज़र में, एंड हाउ कैन दे बी डेल्ट विद? आई थिंक कि सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हमारे पास रॉ मटेरियल मोस्टली इम्पोर्टेड. ओके. सो मेरा ख्याल है कि इसमें अगर क्योंकि हाइड्रो क्रैकिंग यूनिट एक बड़ा बेसिक होता है, एंड इंडिया हैज़ मेनी, वी डोंट हैव इवन वन. ओके. सो जो हमारे वहाँ से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो निकलती हैं ना, तो वो वहाँ से फिर उसके जो डेरिवेटिव्स हैं ना वो सारे निकलते हैं, जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत पूरा पाकिस्तान यूज़ करता है, और वो सारे इंपोर्ट होते हैं. सो आई थिंक द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ एन इशू, रुपी डॉलर पैरिटी इज़ एन इशू. तो अनलेस हम इस पे नहीं जाएंगे कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें और पाकिस्तान में चीज़ें बनाना शुरू करें, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट ऑल ऑफ अस नीड टू वर्क ऑन, एंड स्टार्ट मेकिंग प्रोडक्ट्स जो कि इंपोर्ट हो रही हैं, और उनको पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के साथ लाएं और उसके बेसिक रॉ मटेरियल्स यहाँ प्रोड्यूस करें. And what role do you think the government should or can play in order to elevate this industry as an overall, कि eventually हम exports में भी कोई contribution करें through this industry? कोई ऐसे measures in your opinion that the government can take for the betterment of I think setting up a state of the art R&D institution जिसमें अगर गवर्नमेंट की हेल्प हो जाए तो, बिकॉज हम तो इसको प्राइवेटली कर रहे हैं. बिल्कुल. एंड सेकेंडली जिस तरह ये हाइड्रो क्रैकिंग यूनिट की मैंने बात की, और इस तरह की डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं. पेंट में बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम यूज़ कर लेते हैं इंपोर्ट करके. तो इस तरह की ये इस लेवल की इंडस्ट्रीज़ हैं कि गवर्नमेंट ही इसमें कुछ हेल्प आउट करे. इट मे बी अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. गवर्नमेंट कम्स अप, वी वुड बी देयर टू हेल्प इट आउट एंड डू व्हाटएवर वी कैन फॉर इट, बिकॉज दिस इज फॉर पाकिस्तान.
Welcome back to our show. So, as we were discussing, recently you have done a very commendable step. You've taken a very commendable step कि आपने renewable energy की तरफ आप लोग लेकर आए हैं through the usage of solar energy, which I think has reduced your usage of electricity to 50%, approximately, which is amazing Yes. for our environment. बहुत ही ज़बरदस्त initiative है. इसकी क्या thought process थी? One fine day, how were you able to paints बन रहे हैं environment का, और ये सारा initiative किस तरह से शुरू हुआ, क्या था? Again जी, because looking at the long run, because every business and a businessman leaves a legacy. So obviously we all want कि जो हमारा carbon footprint है वो कम से कम हो हमारी कंपनी का. So हमने वो 800 kVA का हमने वो लगाया है अभी सोलर का प्लांट which is operational. जी. So the thought behind it was just that कि to leave a greener Pakistan for the generations to come. सही सही. अच्छा, मूविंग ऑन, जब हम बात करते हैं किसी भी बिजनेस की, इंडस्ट्री की, मार्केटिंग इज़ अ वेरी क्रूशल एस्पेक्ट डेफिनेटली. और विद द डिजिटल एवोल्यूशन, विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक दैट has been or is for an industry like paints? Digital marketing is the future. और जो है उस पर हमारा पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा फोकस है. एंड उसके ऊपर हमने कंसल्टेंट्स भी रखे हुए हैं. अच्छा. और कंपनीज भी हमारे साथ कॉन्टीन्यूसली चल रही हैं जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग को देखती हैं. एंड बिकॉज देखें, बात यह है कि इस वक्त इफ़ यू लुक एट द यंग जनरेशन, वो तो अब टेलीविजन से काफ़ी दूर हो चुकी है. बहुत ज़्यादा, बिल्कुल. इवन इफ आई लुक एट माई किड्स, तो उनमें से कोई भी टीवी नहीं देखता. और अगर उसने कुछ देखना है तो वो फ़ोन पे ही देख रहा होता है या लैपटॉप पे देख रहा होता है. सो ऑब्वियसली दैट इज़ द फ्यूचर. एंड एवरी कंपनी विच नीड्स टू सर्वाइव, बिकॉज देखें टॉप ऑफ माइंड रिकॉल हर मार्केटियर का ड्रीम होता है कि वी कम इनटू द टॉप 3 ब्रैकेट. और उसमें रहने के लिए गो के दिस इज कंज्यूमर ड्यूरेबल. पेंट इज नॉट FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड नहीं है लाइक सोप और एन ऑयल. बट बीइंग अ कंज्यूमर ड्यूरेबल, आप 3 से 4 साल में एक फ्लुएंट हाउस होल्ड दोबारा इस साइकिल में आता है. बिल्कुल. तो उस वक्त उसके जहन में होना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक सोशल मीडिया इज चीपर. It can be measured. Numbers can be measured. Yeah. Measured. So I think rather than spending too much on other mediums, I think इस पे हर कंपनी जो कि फ्यूचर को देख रही है has to focus, and that's what we do. When it comes to our industry of paints, क्या potential आप देखते हैं पाकिस्तानी पेंट इंडस्ट्री को लेके, और फ्यूचर क्या देखते हैं ओवरऑल, एंड how do you think it can be tapped in further, कि हमारे जो यूथ है, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं या जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, वो भी इस इंडस्ट्री की तरफ आएँ और फोकस करें. लाइक व्हाट डू यू सी फॉर द फ्यूचर? पाकिस्तान में अभी पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पेंट इज़ प्रीटी लो. ओके. I mean, as per our estimates, it's about 1 liter per capita. So इस वक्त मैं समझता हूँ कि इसमें भी काफ़ी जो इनकम लेवल बेहतर होंगे, GDP इम्प्रूव होगी, तो लोग जो हैं, ज़ाहिर है कि अभी जिस तरह गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया हाउसिंग पे, बिल्कुल, तो जब घर बनेंगे, और क्योंकि इस पेंट में ये होता है कि ये इसकी वर्टिकल ग्रोथ भी है और हॉरिजॉन्टल भी है, बिकॉज घर बनता है और उसके बाद वो रीपेंटिंग साइकिल में आता है. सो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल ग्रोथ वर्टिकल से ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है. सो आई थिंक इसमें भी काफ़ी स्कोप है. एंड आई थिंक इसमें अगर जो भी मेहनत करेगा और अच्छी प्रोडक्ट्स अच्छी प्राइस के साथ, अच्छी मार्केटिंग कैंपेन्स के साथ लाएगा, वो उसमें he'll do well. अच्छा, when we talk about diamond paints, so what category of classes does it cater to? मतलब कि कह लें अपर मिडिल है या मिडिल क्लास भी इसको, मैं डेकोरेटिव पेंटिंग पेंट्स का स्पेसिफिकली पूछ रही हूँ, तो उस लिहाज से थोड़ा सा बताएं कि कहाँ पे स्टैंड करता है. देखिए, वी हैव ऑल कैटेगरीज, A+ भी है, B भी है, C भी है इन अ पॉपुलस. वी हैव द एस रेंज, विच इज़ द हाइस्ट इन क्वालिटी, और ज़ाहिर है कि सारी मार्केटिंग वगैरह और एफर्ट उसके लिए हो रही होती है. देन वी हैव द ओवरऑल रेंज. रिसेंटली यू ऑल्सो हैव बीन अवॉर्डेड विद द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर. जब एक्नॉलेजमेंट ऐसी मिलती है, अप्रिसिएशन ऐसी मिलती है, हाउ डज इट फील? क्या मज़ीद मोटिवेशन मिलती होगी? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, it did happen, and it was overwhelming. Because it's something that I dreamed of, and I actually never thought would be possible. To cross the multinationals, which been here for like 20-30 years before we were here. Definitely. So I think that these were maybe the
few reasons so we got this thing. That's great. Ajay, you're also very proactive when it comes to CSR, corporate social responsibility. One of your ventures is on your late father, Mir Alauddin Welfare Foundation. उसका इनिशिएशन कब हुआ, कैसे उसके कहलें थॉट प्रोसेस आया कि ये इस तरह से शुरू होना चाहिए, और क्या क्या कुछ अंडर द अम्ब्रेला उसके हो रहा है? Actually, we do a lot, but our focus is on two things, medical and education. Okay. So जो medical needs हैं हमारे एरिया में स्पेशली बिकॉज फिजिकली वहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं, एक्सरेज होते हैं, अल्ट्रासाउंड होती है. फर्स्ट वी वर वेरी फोकस्ड ऑन हेपेटाइटिस. अल्हम्दुलिल्लाह जब से इंजेक्शन से निकल के अब हम टैबलेट सोल्डी पे आए हैं ना, तो वो बहुत कंट्रोल हो गई है ये जो एपिडेमिक थी मेरा ख्याल में, बिकॉज बहुत ज़्यादा थी. नाउ वी कैन सी द नंबर्स रिड्यूसिंग. इस वक्त लाइफ लॉन्ग डिजीजेज हैं, लाइक हाइपरटेंशन है, एस्थमा है, और डायबिटीज़ है, बिकॉज इसकी आपको दवाई चाहिए फॉर लाइफ, और जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते. तो वी एक्चुअली रजिस्टर देम एंड वी लुक फॉर देम फॉर लाइफ. और जिसमें अभी मैंने जो देखा है कि जो बहुत ज़्यादा चीज़ सामने आई है वो डायबिटीज़ है. Okay. It is so much around कि बहुत छोटी उम्र Even के in youth, young लोगों बच्चों में भी हो रही है, and it's devastating जो मैं वो देखता हूँ. But we doing what we can. और एजुकेशन के हवाले से हमारे पास कोई आता है अपनी कंपनी में भी and even outside, so हमारा फोकस उसके ऊपर होता है. अच्छा, इंसान when you know इतना कुछ चल रहा होता है प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, तो कभी कभार ऐसा भी एक फेज़ आता है when things are not going your way, या जिस तरह से चीज़ें एक्सपेक्ट की हैं उनमें कोई hindrances आ जाएं. ऐसे किसी फेज़ में how do you keep yourself motivated and how do you keep on going? I think it's the belief of every Muslim that everything is sort of preordained, especially risk. सही. बिकॉज बिजनेस में ज़्यादा चैलेंजेस तो बिजनेस के हवाले से ही आएंगे. तो उसमें यस प्रॉब्लम्स आती हैं, बट आई थिंक इवेंचुअली यू जस्ट हैव टू वेट फॉर देम टू पास अवे एंड दे डू. तो बस अल्लाह पे यकीन हो, और चूँकि हमारे तो यहाँ 10% शेयर है अल्लाह मियाँ का, so that gets us away from all the problems. And I think that is one major reason which is bringing all the barakat and blessings in your work. Of course. Bilkul, definitely. Achha, talking about more of your CSR ventures, Ustaz is also one of your ventures which is basically teacher education related. उसके बारे में थोड़ा सा और बताएं, और क्या है सारा ऑपरेशन उसका और किस तरह से वो फंक्शन कर रहा है? जी, अभी हमने बल्कि एक अतालीक भी शुरू किया है. तो दे आर बोथ डिफरेंट. ओके. उस्ताद जो है वो शुरू इसलिए किया था टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जी, बिकॉज हम तालीम और तरबियत की बात करते हैं, और तालीम बिकनी शुरू हो गई और तरबियत ख़त्म हो गई अनफॉर्चुनेटली. तो उस वजह से अब टीचर्स को ये बताना कि उन्होंने आगे तरबियत कैसे करनी है, उनको दोबारा वो चीज़ याद कराना, उसके लिए फिर ये एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं. और उसके अलावा बहुत सारे उसमें हम जब हमारी जो टीम है जो है वो जब सोशल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त यूथ के, लाइक एथियज़म इज़ वन ऑफ देम, और इस तरह के इश्यूज को एड्रेस करना प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसको वो समझ सकें जो आजकल के यूथ जो रिलेट कर सकें. हाँ, तो वो एक उसको हम कर रहे हैं. और अतालीक के साथ भी हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का बहुत एक वसी नेटवर्क है. ऑनलाइन ट्रेनिंग्स फॉर वो एक्चुअली वो ज़्यादा हम फोकस करते हैं उलमा के ऊपर. ओके. जो हमारे मदारिस के स्टूडेंट्स जो कि 8 साल पढ़ के दरस निज़ामी करके निकलते हैं, उनको डायरेक्शन देना. अच्छा. कि उनकी फिर ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं कि हाउ टू बी अ गुड टीचर. इवन पेरेंटिंग के ऊपर कोर्स कराया जाता है. और प्लस ये कि अगर वो किसी प्रोफेशनल की तरफ जाना चाहें उसमें उनकी हेल्प आउट की जाती है. सो वी हैव 2 सच इनिशिएटिव्स, एक उस्ताद और एक अतालीक. एंड आई थिंक the idea is to bring some change in the society. So we are doing our bit. एक नॉर्मल दिन आपका किस तरह से शुरू होता है इन ऑफिस? क्या क्या टास्क्स होते हैं? किस तरह से सब चीज़ों को ओवरव्यू करते हैं? और जनरली एज अ लीडर, एज अ बॉस, व्हाट इज़ योर मैनेजमेंट स्टाइल? I think it's been many years that I have taken the empowerment mantra to heart.
बिकॉज आई बिलीव कि जो मैनेजर्स हैं उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे विद अथॉरिटी विच इज़ एम्पावरमेंट एंड एम्पावर देम टू मेक डिसीजंस एंड जस्ट look for wherever you think that they need some guidance. सही. So I think कि मैं यहाँ अकेला तो आ ही नहीं सकता था. बिल्कुल. It's a list of so many managers. यानी कि आपकी procurement से लेके, production से लेके, R&D से लेके, sales से लेके, you know it's a company of 700 people now. तो वो एक collective effort थी जो यहाँ इस चीज़ को लेकर आई है. So I think empowerment is the word. And what sort of traits do you look for a person to be a part of your team, or just to become an employee of Diamond Paints? कोई ऐसे traits जो आपको बहुत interesting लगते हो कि ये होंगे तो this person should be a part of it? I think एक तो ज़ाहिर है कि we are very focused on business. So एक चीज़ तो ये है कि वो he should be a professional in its truest sense. और उनको अपना काम में वो expert होना चाहिए पहली बात. He should know what he is doing. और दूसरी बात ये है कि self respect for all. मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि हमारे कोई भी एम्प्लॉई किसी और को कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात है. दैट्स टेकन वेरी सीरियसली. सही. एंड अदरवाइज जो उसको ट्रेनिंग चाहिए वो हम करवाते हैं. और आई थिंक जनरली फिर वो हमारा वो जो एक ऑरा है अपनी कंपनी का कि यू नो एवरीबडी नोज कि ये इसका शेयर जाना है तो उधर. उसके साथ इन लाइन होना चाहिए. इन लाइन है. और आई थिंक सिर्फ ये कहने से नहीं होता कि वी लुक आफ्टर यू नो, वी एक्चुअली लुक आफ्टर देम. बिल्कुल. जिस तरह अभी मेरा ख्याल है आज तक शायद प्राइवेट सेक्टर ना हो, अभी हमने पिछले साल जो मुख्तलिफ हमने इनिशिएटिव्स लिए एम्प्लॉयज़ के लिए, उसमें एक ख़ास लेवल के ऊपर एम्प्लॉयज़ को हमने हाउस लोन देने शुरू कर दिए. अच्छा, ज़बरदस्त. सो विच नेवर हैपेंस ऑन अ प्राइवेट सेक्टर बिकॉज आई थिंक यार अगर मैं इट्स वेरी ईजी कि यू गो इनटू द अदर पर्सन शूज. यार मैं अगर होता था कि हर बंदे का ड्रीम होता है कि यार 40s के करीब आई हैव माय ओन छत हो मेरे सर पे अपनी. तो यार उसमें अगर मैं ये चाहता हूँ तो वो क्यों नहीं चाह रहे होंगे ना. तो यू हैव टू थिंक on the other side. I think when you know that your company or your employer is believing in the concept कि we need to grow together, तो I think वो उससे एक आपके अंदर as an employee motivation और loyalty भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. जी बहुत with the organization. क्योंकि हमारा है कि जिस तरह भी हमने पीछे जब 1 बिलियन पहली दफ़ा क्रॉस किया, I gave everybody 50% बोनस और सैलरी. अच्छा फिर पिछले साल ही हमने 1.5 बिलियन क्रॉस कर लिया 2 महीने बाद. आई अगेन डिड दैट. और उसके अलावा जो है ना आई मीन दैट्स हाउ. और प्लस है कि हमारा वो एक WPPF होता है, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, जिसमें यू शेयर 5% ऑफ योर प्रॉफिट्स विद योर एम्प्लॉइज. उसको हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं. और उसका कुछ इस तरह होता है कि इट्स मोर टुवर्ड्स द लोअर एंड एम्प्लॉइज, जो अभी अनाउंस करने वाले हैं जो हमने प्रॉफिट्स को देखा है. तो आई थिंक एवरी एम्प्लॉई other than all the bonus, everything will get about 70K per person. I think all budding young professionals should send in their resume if they have what it takes. Why because not? they'll be happy employees. Why not if there's a position? Why not? Yes. Definitely. Welcome back to our show. जैसे अभी हम बात कर रहे थे प्रोफेशनली कोई ऐसा डिसीजन जो आपको लेना बहुत मुश्किल लगता हो, यू रियली डिसलाइक टेकिंग सच अ डिसीजन, या वो एक मॉन्यूमेंटल भी हो सकता है, या एवरी नाउ एंड देन प्रोफेशनली यू जस्ट हेट डूइंग दैट. Firing somebody. Yeah, it is really hard because but sometimes you have to do what you have to do because I firmly believe के मैं एक बुक को बहुत फॉलो करता हूँ, जिम कॉलिंस की गुड टू ग्रेट. ओके. और उसके जो ट्रेड्स है ना, आई वुड से कि एज यू सेड ऑल बडिंग एंटरप्रेन्योर्स दे शुड read that book because I've read it 3 times. Wow. And I think that that book gives you the exact direction so how to make your good business a great business because I did that. Sahi. Moving on, when we talk about Diamond Paints, फ्यूचर को लेके क्या विजन है, क्या प्लान्स हैं, या कोई ऐसे प्रोडक्ट्स जिन पे अभी काम हो रहा हो विच वी विल बी सीइंग इन फ्यूचर. टेल अस अ लिटिल अबाउट दैट. जी अभी हमने एक तो फैक्ट्री में जो थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं. फैक्ट्री सुंदर में है हमारी ऑन 8 एकर्स. और उसमें अभी हम
ऑयल्स यूज़ करते हैं, सोयाबीन ऑयल एंड लिंसीड ऑयल फॉर मेकिंग रेजन्स। ओके। वो हम रिफाइंड लेते थे, उसकी रिफाइनरी हमारी एक तो वो लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा। दूसरा हम जो वाटर बेस्ड रेजन्स, पॉलीविनाइल एसीटेट्स और एक्रिलिक्स यूज़ करते हैं, वो हम पहले IBCs में ट्रांसफ़र करते थे। ओके। वो उसके हम थ्रू पाइपलाइन, थ्रू साइलो ट्रांसफ़र, वो प्रोजेक्ट चल रहा है। और आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारा इन्वायरमेंट के हवाले से एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि सुंदर में जब गए थे तो हमसे वादा किया गया था कि हमने सिर्फ एफ्लुएंट को, दे विल लुक आफ्टर इट, दे हैव द फंड्स बट दे हैवंट बीन एबल टू डू इट समहाउ। सो हमने फिर वो अपना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, और वो भी हमने बायोडिग्रेडेबल, ओके। कि हमारा फ्लुएंट जिस टैंक में जाएगा उसमें हमने द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज़ कि एक रिएक्टर है विच प्रोड्यूसेस बैक्टीरिया एंड दैट बैक्टीरिया ईट्स अप ऑल द फ्लुएंट। ओके। वरना अदरवाइज आप केमिकल्स के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। सही। सो इसमें सिर्फ वो बैक्टीरिया विल डू द मैजिक, वाओ, और क्लीन वाटर विल फ्लो आउट। इट्स अमेजिंग। सो दैट इज़, आई थिंक ये हमारा मार्च में दिस विल बी ऑपरेशनल इंशाल्लाह। Zabardast, zabardast. So you are a great success story, definitely. You've brought Diamond Paints to this stature, and इस सब को देखते हुए, who do you think has been your, let's say, role model or inspiration who you have looked up to? देखिए, इंस्पिरेशन तो मेरा ख्याल हर मुसलमान की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, बिकॉज ही एक्सेल्ड इन एवरी रोल। ही वॉज अ बिजनेसमैन, ही वॉज अ फादर, he was a commander in chief of the army, and you know he did everything. Yeah, definitely. So वो रोल तो वो है, but what I actually देखे हम के इसको कैसे लेके आए, तो I think my team, my employees, my colleagues जिनके साथ मैं यहाँ तक आया, so I think जिनके बगैर ये हो ही नहीं सकता था। I think in every हर लेवल पे हर बंदे ने अपना समझ के किया है, तो ये यहाँ तक आया है। और एंड ऑफ कोर्स मेरी वालदा की दुआएं हैं। सो आई थिंक my people actually, I would give everything to them. Well, I think that's commendable that you're giving the credit out loud. वरना usually इस question का answer in terms of personalities मिलता है, कोई अपने father को, कोई अपने mentor को credit देता है, but it's great that you value your team, and I think that is one of the big reasons of the success of the company. ये मैंने अपने वाले से सीखा। सही, ज़बरदस्त। हमने काफ़ी टेक्निकल और प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन अभी तक कर ली है। नाउ टुवर्ड्स लाइटर क्वेश्चन, समथिंग दैट यू नो रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। तो मुझे बताएं कि फॉर यू आइडिया और डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस वो क्या होगी? आई थिंक हेल्पिंग अदर्स एंड watching my colleagues, my employees happy. Okay. Do whatever I can do for them. Sahi. That is very important for me. That's amazing. And when, let's say, things get very stressful, तो आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होती है अपने आप को एक ब्रेक देने के लिए, एक ब्रीदर देने के लिए? क्या करना पसंद करते हैं? I play polo. Okay. And won the national championship in 2016. Wow, that's amazing. So I still actively play it, and obviously I have horses, so I ride. So I think that's the best thing, and that's my passion also. Rewinds you and stuff. Yeah, of course. सही. अच्छा, with so much going on and with a busy schedule, how do you make sure कि एक balance strike करें personal और professional life में, family को make sure करें time देने के लिए? तो what do you do for that? I think it's all about time management. And अगर हम सब लोग इस चीज़ को देख लें कि हमने टाइम को कैसे मैनेज करना है, और उसको जो 4 quadrants of Eisenhower, अगर जिसमें ये बता दिया जाता है कि व्हाट इज़ अर्जेंट एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, आई थिंक आपको अपना टाइम मैनेज ही करना पड़ता है टू ब्रिंग अ बैलेंस. ऑब्वियसली स्टार्ट में आई वाज वर्किंग मे बी 14-16 hours a day, traveling all over Pakistan, establishing dealerships and learning the tricks of the trade. तो उसमें मैं इतना बैलेंस नहीं रख सका. That time is gone unfortunately. But वो होता है कि कहीं ना कहीं तो आपको फिर नुकसान हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा एक तरफ जाते हैं. बैलेंस में वो नहीं रख सका था. Now I'm trying to make up for whatever time I've left. चलें. As long as now you're doing it, then that's fine. और मुझे बताएं कि जो गुस्सा है वो कितना आपकी लाइफ का हिस्सा है, कितना आता है, और अगर गुस्सा आ जाए तो फिर कैसे उसको कंट्रोल करते हैं? फॉर्चुनेटली मुझे बहुत कम आता है. अच्छा. और जो है
दूसरा है कि कभी आ जाए और वाकई कोई ऐसी बात हो ना, तो आई वेट इट आउट। ओके। मैं रिएक्ट नहीं करता, आई वेट फॉर 72 आवर्स अगर मुझे हो कि मैंने उस पर वाकई करना है, बिकॉज 72 आवर्स में because गुस्सा takes over your thinking ability. Your decision making also gets hampered. It's affected. So you have to be very cool to decide कि यार शायद वो बात सही हो, बिल्कुल, और उस पर गुस्सा आपका गलत हो। So I think you just need to wait it out and cool yourself. I think that's a great tip. और मुझे बताएं कि as you were saying that you were fond of reading, तो किताबों का कितना शौक रखते हैं, और कोई ऐसी बुक या लाइक होता है जो जैसे भी आपने एक हमें सजेस्ट भी की, समथिंग ऑन दोज लाइंस विद दैट यू वुड वांट आवर व्यूअर्स टू रीड, तो अपनी भी कोई सजेशन बताएं बुक्स की। किताब तो सबसे पहले कुरान, बिल्कुल, बिकॉज उसके वो तो कुरान में है ना कि एंड विद ट्रांसलेशन ऑफ कोर्स, सो यू नो कि वो अल्लाह ताला आपसे क्या कह रहे हैं, बिकॉज इट्स अ होल, इट्स हाउ योर लाइफ यू हैव टू स्पेंड इट। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि आपको इत्मीनान आ ही नहीं सकता जब तक आप अल्लाह का जिक्र ना करें। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है सबसे पहले तो उससे बड़ी तो किताब ना आई है ना आएगी। उसके बाद मैंने जिस तरह बात की थी कि बिजनेस के हवाले से गुड टू ग्रेट है, गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस, और उसके जो ट्रेड्स उन्होंने बताई हैं वो सीईओ की ट्रेड्स ही एक्चुअली हैं, जिसमें द राइट पीपल ऑन द बस, द रॉन्ग पीपल ऑफ द बस, जिसमें आपने वो फायरिंग पे ये बात आई थी, बिकॉज when I read that then I had to decide that which are the people that have to be off the bus, because देखिए business is continuously changing. So I mean I think इन books के ऊपर अगर पढ़ें तो you will find something. इनसे भी you will draw inspiration, ना basically. Yes, definitely. हाँ, बिल्कुल। So as you were telling us that you have traveled all over Pakistan, तो पाकिस्तान में कोई ऐसी favorite destination where you want to keep on going back and back? I used to love Swat Valley. Okay. I still do. अच्छा। बिकॉज मैं जब भी ट्रैवल करता था तो वहाँ मैं ज़रूर स्टे भी करता था। अच्छा। वरना होता है बिजनेस ट्रिप्स में यू वांट टू कम बैक होम एज सून एज पॉसिबल टू कम बैक टू द फैक्ट्री एंड योर होम, बट आई स्टिल लव दैट वेरी। सही। एंड व्हाट अबाउट एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन? Argentina. It's very different answer. Because the world's best polo is played there. Okay. Now we get it. I've been there a few times to watch their national championships. Okay. In Argentina. Oh, this is something new that I learned, that Argentina is known for their polo. Yeah. They're great. आपकी प्रोफेशनल जर्नी देखी जाए तो इट्स अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेशन एंड सक्सेस। आपने खुद अपनी जर्नी से क्या सीखा अभी तक? आई थिंक सबसे पहले जो है ना दैट परसेवरेंस, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं व्हेन यू स्टार्ट, बट यू जस्ट हैव टू डिग योर हील्स इन एंड स्टे देयर। और दूसरा है कि नियत, आपका जो इंटेंशन है टुवर्ड्स योर कस्टमर एंड योर पीपल, it has to be is very right. You can't cheat your customer, you can't cheat your, because बेवकूफ़ कोई नहीं है, and ultimately अगर आप अपने कस्टमर की केयर करेंगे, उसके लिए अच्छा सोचेंगे, somehow they get to know it. Definitely. अच्छा, to end our conversation, I would want कि आप कोई मैसेज, कोई एडवाइस दें हमारे जो यंग ऑडियंस है, जो यंग व्यूअर्स हैं, जो भी अपनी डिग्रीज ख़त्म कर रहे हैं या अपने करियर्स को वेंचर आउट कर रहे हैं, उनके लिए कोई एडवाइस दें। आई थिंक वही बात है कि एक तो नीयत अपनी सही रखें एंड डू देयर बेस्ट, और कोशिश करें कि आपके बड़ों की दुआएं आपके साथ, बिकॉज दैट वुड बी क्रूशल, बिलीव मी, स्पेशली योर मदर। और उसके बाद ये है कि कुछ भी करें उसमें बस ये 3-4 चीज़ें करते जाएं, बिकॉज एज ए सेड कि देखिए रिस्क इज़ प्री ऑर्डेन्ड ना, बिल्कुल हमें हमारा जो रिस्क है वो लिखा जा चुका है, कब मिलेगा कैसे मिलेगा, उसके लिए ऑब्वियसली दुनिया दारुल असबाब है एंड यू हैव टू डू समथिंग टू गेट समथिंग डन। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तिजारत भी की, खुद जंगें भी लड़ी, सो वो ये नहीं है कि वो दुआ से सब नहीं होता, यू हैव टू बी आउट देयर, यू हैव टू फाइट इट आउट। सो एक पूरा प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना है, उसके लिए हिम्मत भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए, और साथ वो जो द रीज़न ऑफ आवर एग्जिस्टेंस कि है कि वो मत छोड़ें, बिल्कुल, बिकॉज बहुत सारे लोग ना इबादत से मतलब ले लेते हैं कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, नहीं, इबादत में उसके साथ आपका आपका लेन देन कैसा है, आपके मामलात कैसे हैं लोगों के साथ, आपका इखलाक कैसा है, बिल्कुल।
ठीक है ना, ये बहुत की दो Matter चीज़ें करता हैं, और ये है कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल, द होल ऑफ दिस विल बिकम कि ये आपकी इबादत हैं। इट्स नॉट ओनली कि आपने देखें वो आपका और अल्लाह का मामला है, बिल्कुल, मगर हाउ यू डील विद पीपल, Definitely. दैट इज़ आई थिंक हाउ यू वुड बी जज्ड। definitely, definitely. तो बाकी तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, बट आई थिंक कि वो जो कहते हैं ना कि इम्तिहान इस चीज़ पे नहीं होना कि आपके पास क्या था या क्या हुआ, इम्तिहान उस चीज़ पे होगा कि आपके साथ जब वो हुआ तो हाउ यू रिएक्टेड टू हाँ, इट। what did you do? हाँ, बिल्कुल. वो रिएक्शन जो है ना वो मैटर करता है। सो आई थिंक कि बस इन चीज़ों के साथ चलें, एंड आई थिंक इंशाल्लाह अल्लाह ताला। Thank you so much for a very inspiring conversation. Got to know so much and learn so much. So we're very grateful कि आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए. Thank you so much. थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you. So this was our conversation with Mr. Mir Shoaib Ahmed, where we not only learnt about his professional journey, but also by how giving to others you can be successful yourself. For more such conversations, keep on watching our show Meet the CEO, only on Discover Pakistan.